A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we are going to start our lecture on sociolinguistics. Let us see what sociolinguistics actually is. But before going towards sociolinguistics, we must see what linguistics is. As I have told you before earlier, that linguistics is the study of language. Linguistics is the study of language. This is basically scientific study of language. But when it is the study of language, what do we mean by that, or what branches are there? This very part of your lecture is very important in the sense that we are going to see what basically the branches of linguistics are. If there is any question about branches of linguistics in the examination, you are supposed to write all these branches, or you are supposed to give an overview of all these branches. Let us see, or let us have an overview. First of all, we see that linguistics is basically divided into three categories. Number one is microlinguistics. Number two is macrolinguistics, and the third one is other branches. As far as the microlinguistics is concerned, it includes phonology, morphology, syntax, and semantics, and all these four branches you have already gone through. As far as the microlinguistics was concerned, that is all done by us. Chapter wise we have done phonology, morphology, syntax, semantics, and even phonetics. So then we see the other branch, that is basically the macrolinguistics. As far as the macrolinguistics is concerned, in the macrolinguistics we have sociolinguistics, then we have psycholinguistics, neurolinguistics, anthropological linguistics, and language acquisition. Social linguistics is basically anthropological linguistics, and the sociolinguistics are basically the connected branches. Okay, they have a special connection of they being interconnected. Psycholinguistics we have already gone through. Neurolinguistics we will not be studying, because in our syllabus there is no concern of neurolinguistics. But it is basically the neurology, or the study of brain, that we have already studied in the phonetics. Language acquisition is also done as far as the other chapters are concerned, in which we have tried to explain in psycholinguistics we have tried to explain how language acquisition is formed. Either it is through the environment, or it is through the mental capabilities that one learns language. So as far as the macrolinguistics is concerned, in this we have done psycholinguistics and sociolinguistics. आज हम शुरू करने जाएंगे. अदर ब्रांचेस में लेक्सिकोलॉजी और कंपैरेटिव हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं. लेक्सिकोलॉजी तो नहीं किया, लेकिन आपने इस पे मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू ज़रूर दे दूँगी कि लेक्सिकोलॉजी होता क्या है. लेकिन कंपैरेटिव हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स पे आप एक कंप्लीट हैंड आउट जो है वो स्टडी कर चुके हुए हैं. आइए आज हम देखते हैं अपना चैप्टर सोशियोलिंग्विस्टिक्स. सोशियोलिंग्विस्टिक्स होता क्या है? डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि लैंग्वेज जो है वो बेसिकली सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड सोशल कॉन्टैक्ट्स दोनों पर बेस्ड करती है. यानी अगर आपका सोसाइटी के साथ कोई लेना देना नहीं है तो आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर आपका सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन है, उसके साथ आपका रिलेशन है, तो आपको सोशल कॉन्टेक्स्ट चाहिए, आपको सोशल कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए. उनकी बुनियाद पे आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आपको लैंग्वेज की यूजेज के लिए सोशल कॉन्टेक्स्ट चाहिए,
यानी हम ये देखते हैं कि किसी मुआशरे में किसी लैंग्वेज का क्या किरदार है, तो उसे हम सोशो लिंग्विस्टिक्स कहेंगे। हम बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस में क्या है। बेसिक डेफिनेशंस में जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है लिंग्विस्टिक्स की, कि लिंग्विस्टिक्स क्या होता है। लिंग्विस्टिक्स इज़ बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, मीनिंग, फॉर्म एंड कॉन्टेक्स्ट। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि लिंग्विस्टिक है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, इंसानी ज़ुबान की, उसके मीनिंग की, उसके फॉर्म एंड कॉन्टेक्स्ट की, ये 4 चीज़ें याद रखनी हैं, उसकी स्टडी को हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। Then we see what is sociolinguistics. Sociolinguistics is the study of language in relation to society. It means that when we study sociolinguistics, then we are studying language in relation to society. यानी उसका सोसाइटी में क्या किरदार है, या सोसाइटी का फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज में क्या किरदार है। किसी एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों में लैंग्वेज की क्या वेरिएशंस हो सकती हैं, लैंग्वेज किस तरह से यूज़ की जा सकती है, लैंग्वेज का इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो याद रखने की, वो ये है कि डिफरेंस या कंट्रास्ट क्या है सोशल लिंग्विस्टिक्स एंड सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज में। सोशल लिंग्विस्टिक्स जो है उसका मेन फोकस सोसाइटी ऑन लैंग्वेज, यानी मुआशरे का लैंग्वेज पर क्या इम्पैक्ट है, क्या रोल है। एंड सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज इज़ कंसर्न्ड और इज़ फोकस्ड अबाउट लैंग्वेजेस इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। सो मेक इट confirm that there is a difference in sociolinguistics. सोशियोलिंग्विस्टिक्स में सोसाइटी का इम्पैक्ट लैंग्वेज पर, और सोशियोलॉजी ऑफ लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेजेस का इफ़ेक्ट सोसाइटी के ऊपर। ये मेन डिफरेंस है जिसको आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं कि सोशियोलिंग्विस्टिक्स के मेन रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हैं। एक तो वेरी इम्पॉर्टेंट अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं जिनको फाउंडर ऑफ द डिसाइपल ऑफ वेरिएशनिस्ट सोशियोलिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन एनॉर्मसली रीजनल एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर who has created much of the methodology of sociolinguistics. His name is William Labov. And the second person who is very much famous, and he belongs to UK, he is Basil Bernstein. ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट है। ये 2 मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोशियोलिंग्विस्टिक्स हैं। फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज वेराइटीज़, सोशल वेरिएबल्स अफेक्टिंग लैंग्वेज, एथनिसिटी। अच्छा, लैंग्वेज वेराइटीज़ क्या होती है? लैंग्वेज वेराइटीज़ से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़ुबान जो है, अगर हम उसको एक कंप्लीट ज़ुबान का दर्जा भी दे दें तो उसके अंदर भी वेरिएशंस मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू। व्हाट डू यू ऑल ऑफ यू थिंक दैट कि हम पूरे पाकिस्तान में किसी भी रीजन में अगर रहते हो तो हमारी उर्दू जो है वो सेम होगी? आपका क्या ख़्याल है? या आपका क्या ख़्याल है कि क्या इंडिया में बोली जाने वाली उर्दू, बांग्लादेश में बोली जाने वाली उर्दू और पाकिस्तान में बोली जाने वाली उर्दू में कोई फ़र्क है या नहीं है? तो आई बेट कि आप लोगों का आंसर यही होगा कि हाँ, फ़र्क है। वो जो फ़र्क है उसे हम लैंग्वेज वेराइटीज़ कहते हैं। ठीक है। अब ये लैंग्वेज वेराइटीज़ बनती कैसे हैं? उसके लिए कुछ सोशल वेरिएबल्स काम करते हैं। वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी बिना पर किसी दूसरी चीज़ में चेंज आता हो। अब लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स इफ़ेक्ट करते हैं, वो कौन सी बेसिस हो सकती हैं जिसकी वजह से लैंग्वेज में चेंज आता है? उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है एथनिसिटी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एथनिसिटी है। नंबर 2 है रिलीजन। नंबर 3 है स्टेटस।
Number 4, gender. Number 5, level of education. Then there is age. Then there is the area, geography, blah 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 blah. There are many things. Let us see these social variables. वो सोशल वेरिएबल्स जो लैंग्वेज को इफ़ेक्ट करते हैं उनमें सबसे पहली चीज़ है एथनिसिटी। एथनिसिटी होती है नस्ल परस्ती, यानी एक नस्ल जो है वो एक नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जैसे हम बांग्लादेशी कहें, वो जो है उनकी उर्दू की ज़ुबान मुख्तलिफ होगी पाकिस्तानियों से। रिलीजन की बुनियाद पर आपकी ज़ुबान में फ़र्क आ सकता है। स्टेटस की बुनियाद पर, यानी आपका सोशल स्टेटस क्या है, आप अपर क्लास से, मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से या बिलो द पॉवर्टी लेवल से रिलेटेड हो, तो उसकी बेसिस पर भी लैंग्वेज में फ़र्क आएगा। जेंडर की बुनियाद पर आपकी लैंग्वेज में फ़र्क आता है। मर्दों की जो ज़ुबान होती है, जो अल्फाज का चुनाव होता है, वो एंटायरली डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ द वुमेन। लेवल ऑफ़ एजुकेशन बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपका लेवल ऑफ़ एजुकेशन क्या है। एक मैट्रिक पढ़ा या एक अंडर मैट्रिक, एक मिडिल पास, एक प्राइमरी पास, एक पीएचडी शख्स, इन सब लोगों की जो ज़ुबान होगी, अगरचे वो सब उर्दू ही बोल रहे होंगे मगर उनमें वाज़े फ़र्क होगा। एज इज़ द नेक्स्ट फैक्टर। उम्र के जो हिसाब है उससे ज़ुबान में तब्दीलियाँ आती हैं। ये वो चीज़ें थी जिन्हें हम सोशल वेरिएबल्स कहते हैं, जो लैंग्वेज को इफ़ेक्ट करती हैं। रूल्स क्रिएशन फॉर सोशल और सोशो इकोनॉमिक क्लासेस, इसके अलावा वो रूल्स जिसकी वजह से सोशल या सोशो इकोनॉमिक क्लासेस बनती हैं, यानी वो क्या रूल है जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि फ़लाँ शख्स बिलो पॉवर्टी लेवल है, फ़लाँ शख्स अपर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, फ़लाँ शख्स मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। डायलैक्ट्स क्या होते हैं? ये यूजेज ऑफ लैंग्वेज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ से आपका फोकस पॉइंट शुरू होता है। लफ्ज़ डायलैक्ट को आज और इसी वक्त अपने दिमाग में बिठा लीजिए और ये कंफर्म कर दीजिए कि जब भी आपके सामने ये लफ्ज़ डायलैक्ट आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं तो ज़ुबान में कहीं ना कहीं तब्दीली ज़रूर होती है। जगह के बदलने से जो ज़ुबान में तब्दीली आती है उसे हम डायलैक्ट कहते हैं। ये डायलैक्ट रीजनल भी हो सकता है, ये सोशल भी हो सकता है। अब रीजनल डायलैक्ट अगर हम कहें तो होगी तो पंजाबी ही, मगर लाहौर में और तरह से बोली जाएगी, मंडी बहाउद्दीन में और तरह से बोली जाएगी, गुजरात में और तरह से बोली जाएगी, मुल्तान में इसी पंजाबी का जो वर्जन है वो और होगा। ये जो चेंजिंग ऑफ द वर्जन विद रेफरेंस टू द प्लेस है, इसको हम डायलैक्ट्स कहते हैं। देन ग्रामर, फोनेटिक्स एंड वोकेबलरी ऑफ द लैंग्वेज जो है, ये भी वेरिएशन पैदा करती हैं लैंग्वेज में अमंग सोशल क्लासेस। यस ऑफ कोर्स, सोशल क्लासेस जो हैं वो जैसे जैसे सोशल क्लास चेंज होगी वैसे वैसे ग्रामर, फोनेटिक्स और वोकेबलरी ऑफ द लैंग्वेज भी चेंज होती जाएगी। तो ये कोड स्विचिंग का जो मामला है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। कोड बेसिकली होता है एक लैंग्वेज को एक कंप्लीट कोड बोला जाता है। जैसे उर्दू है तो उर्दू इज़ अ कंप्लीट कोड। अब कोड स्विचिंग कैसे होती है? ऐसा कैसे होता है कि वो कंप्लीट कोड तब्दील हो जाता है, स्विच हो जाता है? ऐसा कैसे होता है कि हिंदुस्तान में उर्दू का कोई और वर्जन बोला जाता है और पाकिस्तान में कोई और, जबकि उर्दू तो उर्दू होनी चाहिए, उसमें कोई तब्दीली तो नहीं